Hey, so let's look at what I just mentioned in my post market yesterday. So basically, I had mentioned that I'm not looking for a short. I'll only look for shorts, not looking for a long. I'll only look for shorts once this high breaks. So still have the same view. Won't look for shorts as positional, but system. If anything comes in the system, I'd mentioned this also. I'll look for shorts. So what happened in the morning? Let's see. These are the boxes. If you're checking my post market videos, then you should know what these boxes are. So these are the boxes where Nifty, second box especially, where Nifty gap down. And what I was looking for is, if I was not looking for shorts here, and I was not looking for longs, but I did get an opportunity to short. Why? Because if you look at this, it went and it closed below these levels and did a lot of consolidation here, which initiated that short with a stop loss of this high. And yep, so this was my first half trade. Second half, also in first half, you see, this was another reason I went shorts. Not always very unpredictable, these kind of volumes, but crazy. So this also gives you a very good question that very if you know if it's going down, especially if you look at this consolidation, by then Bank Nifty had already broken low. So this also gave me some kind of a +1 advantage on going short, because then Bank Nifty has to break this if it is reversing. And look, if you're looking at Reliance, it was basically sideways after it broke first candle high in the morning. So let's look at what I gave as an idea. I do not share ideas on TradingView now. So 1 o'clock, basically I said if 1 o'clock is at VWAP, I look for a short below 115. It did go down below 115, and this was a scalp trade as mentioned in my video. So this was the idea. This is my reference. 1 o'clock is at VWAP. Look for short scalp trades, gives you a new low. Hence, I was expecting this to be at VWAP. When this was not at VWAP, I was looking for buy opportunities now, especially in Bank Nifty. So because you see this kind of volumes again here. So I was pretty sure something is again cooking here. So I wanted to go long, but without I wouldn't really trade this without any confirmation in Nifty. So again, when you look at these two boxes, this was the low, right? And this is where it took support multiple times. So this was my initiator of going longs with my usual trading style of waiting for the consolidation and which closes above 10 MA on a 3-minute chart. So this was fun, and morning was also fun, but this was really exhausting waiting for Nifty to be in this kind of a range and not not going down or not breaking day low when Bank Nifty is. So somebody had to give in, and Nifty gave in. What am I doing now? Nothing. I will still wait for this to break till I go shorts, or still if I get any system trades or scalping trades as I got today, I will look for shorts. But yeah, this today's low is very important for me. If anything closes below today's low, if there's a gap down, then I won't be interested until unless it comes and retests this zone like it did today. But I think this low is really important, this candle low, and if this breaks, then I can expect some more bearishness in the market. बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, कल के व्यू से स्टार्ट करते हैं. कल का व्यू मैंने क्या ये बोला था कि मैं शॉर्ट नहीं हूँ ना मैं लॉन्ग हूँ, मेरे को लेकिन शॉर्ट करना है अगर ये एक बार इस कैंडल का हाइट उठता है तो, और वो हुआ नहीं. तो अगर आप देखेंगे तो सुबह बैंक निफ्टी, ये 2 डब्बे क्या हैं, अगर आप मेरा पोस्ट मार्केट वीडियोस चेक कर रहे हैं तो आपको पता है ये 2 डब्बे क्या हैं. अगर आपको नहीं पता, जाके मेरा वीडियोस चेक करिए 14 और 15 का, ये डब्बे उस दिन भी थे. तो पोस्ट निफ्टी गैप डाउन हुई थी आज इस डब्बे के अंदर और मैं वेट कर रहा था, मैं लॉन्ग नहीं गया, शॉर्ट नहीं गया, मैं वेट कर रहा था कि ये कैसे रिएक्ट करती है इस डब्बे के हाई पे.
तो अगर आप देखेंगे तो इसने हाई टच करके, और इसी टाइम जब ये हाई टच कर रही थी तो बैंक निफ्टी में ये 2 वॉल्यूम आए थे। आप एक बार चेक कर लेना 3 मिनट के चार्ट्स में निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर, जब ये हाईज यहाँ पर टच कर रही थी तो बैंक निफ्टी में ये 2 वॉल्यूम्स आए थे बहुत खतरनाक। और जब ये वॉल्यूम्स आए उसके बाद निफ्टी कंसोलिडेशन चली गई 2 घंटे के लिए 12 बजे तक, और ये इसने डे लो बना दिया। तो जब ये हुआ तो ये एक साइन था मेरे लिए स्कैल्पिंग करने का तरीका, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 2 चीज़, या फिर बैंक निफ्टी रिवर्स हो जाए यहाँ से, या फिर निफ्टी लो तोड़ दे। तो यही हुआ, निफ्टी ने लो तोड़ दिया और मेरा स्टॉप लॉस था ये हाई। तो ये एक मेरा सुबह का ट्रेड था। इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। बेसिकली आया, गैप डाउन हुआ और रीटेस्ट किया और कंसोलिडेशन हुआ है कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा। इतना तो मैं वेट भी नहीं करता कंसोलिडेशन का, लेकिन मेरा एक और एडवांटेज ये था, कुछ नहीं, एडवांटेज ये था कि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम्स हैं इनको तोड़कर ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, इसने डे लो तोड़ दिया था, तो मेरे लिए ये था कि या फिर ये अब यहाँ से हाई बनाएगा या फिर निफ्टी नीचे आ जाएगी। तो ये एक रीज़न था उसको शॉर्ट करने का। अब मैंने जो आइडिया दिया था सुबह दोपहर को, और ट्रेडिंग में मैं आइडिया शेयर नहीं करता, ये था कि 1 o'clock वीवैप पे रहे और फिर मैं 115 के नीचे बेचूंगा। अगर आप देखें तो ये 115 का कैंडल, मैंने ये भी बोला था स्कैल्प ट्रेड्स होंगे, तो ये आइडिया चला तो है, लेकिन मैं चाहता था इसको वीवैप पे रहे ताकि मैं अपने रेफरेंस के साथ रहूँ, तो इसलिए मैंने वो ट्रेड नहीं किया। तो अब मैं लॉन्ग ट्रेड्स दिख रहा था, स्कैल्प लॉन्ग वीवैप टू वीवैप। तो वो कैसे पकड़ा मैंने, और वो मैंने निफ्टी में नहीं किया, बैंक निफ्टी में किया। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने ये भी बताया था कि ये लो जो है, अपने वीडियोस में बताता हूँ मैं, ये जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ऐसे एक पहली बार जब वॉल्यूम यहाँ पे बाय हुआ था, इसका लो टूट गया था, और फिर यहाँ पर फिर से बाइंग आई है। तो आज इसका लो टूट गया है, पर इसके लो पे यहाँ पर उसने एक तरीके से सपोर्ट ले लिया है काफ़ी बार। तो मैं चाहता था बैंक निफ्टी को बाय करने का, और मेरा आपको तो पता ही है, अगर आप मेरा पोस्ट मार्केट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है मैं कैसे बाय करता हूँ। कंसोलिडेशन प्लस 10 MA के ऊपर क्लोजिंग, तो वो एकदम परफेक्ट था यहाँ पर बाई करने के लिए, और मैंने एंड तक रखा इसको। उसके बाद बेसिकली सुबह का ट्रेड ये, दोपहर का ट्रेड ये। अब क्या करने वाला हूँ मैं पोस्ट मार्केट में मंडे को, कुछ नहीं, तो मैं वेट करूँगा कैसे ओपन होता है। अगर ये वापस ये गिरता है तो मैंने जैसे बोला ये मेरे लिए बहुत अच्छा जोन है शॉर्ट करने का। तो अगर ये इसके नीचे जाता है और मुझे ऐसे जैसे आज एक अपॉर्चुनिटी मिली रीटेस्ट करने के लिए, ये रीटेस्ट करके कंसोलिडेशन करता है, वैसे कुछ अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं शॉर्ट करूँगा। मैं जंप नहीं करूँगा शॉर्ट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है वो सुबह आए वो अपॉर्चुनिटी, दोपहर को भी आ सकती है, और वो मैं ट्रेड लूँगा। अगर ये ऊपर चले जाता है और ये हाई तोड़ता है तो मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूँगा, ये वाली हाई तोड़ता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूँगा उसके बाद। थैंक यू।